السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ جی تو اسٹوڈینٹس، آج کی ویڈیو ہے آپ کی اردو پیپر پریزنٹیشن کے بارے میں۔ اس کا ایک پارٹ ہوتا ہے، ہمارے پاس ایک کوسچن ہوتا ہے اردو کے پیپر میں، اقتباس کی تشریح، جس میں ہمیں ایک پیراگراف دیا ہوتا ہے، ہم نے اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے اور اس پیراگراف کو نثر پارہ کہا جاتا ہے۔ کوسچن کی ہیڈنگ ہوتی ہے اقتباس کی تشریح کریں، ٹھیک ہے؟ تو ہم آج ڈسکس کریں گے، دیکھیں گے کہ ہم نے کس طرح سے اس کوسچن کو، اردو کے پیپر کے اس کوسچن کو کس طرح سے سالو کرنا ہے، کس اچھے طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا اسٹوڈنٹ؟ تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے کوسچن کو۔ ہمارے پاس جو ہے یہ کوسچن نمبر فرسٹ ہوتا ہے، آئی تھنک سوال نمبر 1 ہوتا ہے ہمارے پاس اردو کے پیپر میں یہ۔ تو مینس کہ یہ ہمارے پیپر کی فرسٹ پیج کی پریزنٹیشن ہوگی۔ یہاں پہ آپ سوال نمبر 1 لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ میں یہاں پہ مارکر 605 یوز کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہاں پہ لکھ لینا ہے سوال نمبر 1، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 1 لکھنے کے بعد یہ ہمارے پاس ہے سوال نمبر 1، ٹھیک ہو گیا اسٹوڈینٹس؟ سوال نمبر 1 ہم نے لکھ لیا۔ اب ہم لکھیں گے کوسچن کی مین ہیڈنگ اقتباس کی تشریح، جس کے لیے مارکر 605 نہیں بلکہ مارکر 604 یوز کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو میں لکھوں گی اقتباس کی تشریح، ٹھیک ہے؟ جو کہ ہمارے پاس گیون کوسچن ہے۔ اقتباس کی تشریح اوپر ہم نے اس لیے لکھا تاکہ جو ایگزامینر ہے اسے اندازہ ہو جائے کہ ہمارے کوسچن جو ہم سالو کر رہے ہیں وہ اقتباس کی تشریح والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا اسٹوڈینٹس؟ اب ہم نے اقتباس کی تشریح میں کرنا کیا ہے، نثر پارہ ہے جس کی ہم نے تشریح کرنی ہے، تو یہاں پہ ہم نے چھوٹا سا نثر پارہ لکھ دیں گے، ٹھیک ہے؟ نثر پارہ لکھ دیں گے، صحیح ہو گیا اسٹوڈینٹس؟ اور نثر پارہ لکھنے کے بعد یہاں آپ اپنے پین سے لکھیں گے نثر پارہ جو بھی ہے آپ کا۔ آپ نے اب نثر پارہ کیسے لکھنا ہے؟ نثر پارہ آپ نے یوں لکھنا ہے کہ نثر پارہ کے پہلے 3-4 لفظ لکھ دیں، پھر ٹو بی کنٹینیو کے پوائنٹس لگا کے نیکسٹ لائن پہ اس کا اینڈ کے 4-5 لفظ لکھ دیں، ٹھیک ہے؟ تو لائک ہمارے پاس اگر نثر پارہ ہے تو ہم اس کی یوں لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ آپ ڈاٹس لگا دیں گے، صحیح ہے؟ اور یہاں پہ آنکھ آپ لکھ دیں گے، آنکھ لگ گئی، مطلب آپ کا پیرا جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے جہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے وہ لفظ آپ نے لکھ دینے ہیں، اندازہ ایگزامینر کو خود ہی ہو جائے گا۔ ہمارے پاس جو نثر پارہ ہوتا ہے وہاں پہ 2 سے 3 دیے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ہی ہم نے جو ہے وہ تشریح کرنی ہوتی ہے، تو آپ کی مرضی جو آپ کو اچھے سے آتا ہے آپ وہ والا چوز کر لیں گے، اس کے سٹارٹنگ اور اینڈنگ لکھ دیں گے تاکہ ایگزامینر کو پتہ چل جائے کہ اسٹوڈنٹ نے یہ والا جو ہمارے پاس پیرا ہے وہ سالو کیا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد حوالہ متن ہے۔ حوالہ متن کے لیے مارکر 605 کی ہیڈنگ دینے کے لیے یہ والی مارکر 605 یوز کروں گی، کیونکہ آگے ہم نے جب سب ہیڈنگز دی ہیں، سبق کا عنوان اور مصنف کا نام، تو ہم اس وقت 604 یوز کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ حوالہ متن لکھیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ حوالہ متن لکھنے کے بعد ٹھیک ہو گیا اسٹوڈینٹس؟ حوالہ متن لکھیں گے ہم، حوالہ متن ہم نے لکھ دیا۔ اب حوالہ متن میں ہمارے پاس 2 چیزیں ہوتی ہیں، سبق کا عنوان اور مصنف کا نام۔ وہ ہیڈنگ ہم نے دینی ہے جو کہ ہم نے دینی ہے مارکر 604 سے، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے سبق کا عنوان، ٹھیک ہے؟ سبق کا عنوان لکھنا ہے آپ نے، سبق کا نام لکھنے والی غلطی کبھی بھی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ سبق کا عنوان لکھیں گے اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے مصنف کا نام، مصنف کا نام لکھیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ مصنف کا نام، ٹھیک ہے؟ آپ نے مین ڈیفرنس یاد رکھنا ہے، سبق کا عنوان ہوگا، مصنف کا نام ہوگا، ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس؟ پھر آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے جو بھی آپ کا سبق کا عنوان ہوگا، مصنف کا نام ہوگا، اور اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے
हमारे पास जो अगली है सियाको सबाक की हेडिंग, वो भी हम मार्कर 605 से ही देंगे। यहाँ पे मैंने इक्तबास की तशरीह के लिए 604 इसलिए यूज किया क्योंकि ऊपर हमने लिखा ये 605 से, और 605 के फौरन बाद इक्तबास की तशरीह 605 से लिखते तो ये दोनों अजीब, मतलब दोनों मोटे मोटे लगने थे तो वो प्यारा नहीं लगना था, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने मार्कर 604 का इस्तेमाल किया था। यहाँ पे अब हम लिखेंगे सियाको सबाक। सियाको सबाक आप लिखेंगे, उसकी हेडिंग देंगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, सियाको सबाक की हेडिंग देने के बाद आपने सियाको सबाक लिखने। अब आपने सियाको सबाक कैसे लिखने हैं? सियाको सबाक का मतलब होता है, सियाक का मतलब होता है ये जो सियाक लिखा है, इसका मतलब होता है जो आपके पास ये वाला गिवन पैरा है ना, अब नसर पारा है, उर्दू की लैंग्वेज में बोलती हूँ मैं, इंग्लिश बहुत यूज कर रही हूँ। सियाको सबाक, सियाक का मतलब होता है पहले, यानी कि आपके पास जो दिया हुआ नसर पारा है, इससे पहले आपके सबक में क्या हुआ था उसकी आपने समरी लिखनी है, खुलासा लिखना है 1 से 2 लाइन के अंदर, ठीक हो गया। उसके बाद सबाक का मतलब होता है बाद में, बाद का मतलब इस पैराग्राफ के बाद सबक में आपका जो है उसमें क्या हुआ था, वो क्या कहानी थी, उसका आपने खुलासा लिखना है सिर्फ 2 लाइनों में, ठीक है। आप सियाक लिखेंगे, पहले आपने थोड़ा सा हवाला देना होता है सबक का, मुसन्निफ का, उसके बाद आपने जो है प्रॉपर तरीके में सियाक लिखने होते हैं 2 लाइनों में, फिर सबाक लिखने होते हैं, यानी कि आपका सियाक और सबाक टोटल जो है वो 8 लाइनों से ज्यादा का ना हो। बेस्ट तो यही है कि 6-7 लाइनों में आप 6 लाइनों में कवर कर लें सियाक और सबाक। मोस्टली हमें टीचर्स ने यही बताया था कि सियाक और सबाक आप 6 लाइनों में कवर कर लें तो बहुत अच्छा है। अगर ज्यादा आप करना चाहते हैं तो 7 से 8 लाइन, 8 लाइनें एंड है, सियाक और सबाक 8 लाइनों से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। सही हो गया स्टूडेंट्स, सियाक और सबाक आपने लिख लेनी है 8 लाइनों के। आपको मैंने बता दिया कि सियाक और सबाक होते क्या हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 2 लाइनें ही छोड़ूंगी, ठीक है, उसके बाद 3 छोड़ लेती हूँ, चले। उसके बाद आपने आ जाना तशरीह की तरफ, ठीक है, यानी कि जो आपको नसर पारा दिया है उसकी आपने जो तशरीह करनी है वो आपने सियाक और सबाक के बाद करनी है। आपने यूं तशरीह लिख के और आपने आगे तशरीह लिखनी स्टार्ट कर देनी। अब आपने तशरीह कैसे लिखनी है? अब तशरीह के मामले में ना एक चीज अपने गौर से अपने जहन में बिठा ले, वो ये कि तशरीह आपने जब लिखनी है ना, तो तशरीह का मतलब क्या होता है, एक चीज को एक्सप्लेन करके लिखना, ठीक है, उसकी वजाहत करना। आपके पास ये जो पैराग्राफ है ना, आपने इसको अच्छा खासा एक्सप्लेन करना है। आपको भी पता ही होगा तशरीह क्या होती है, बचपन से करते आ रहे। लेकिन एक चीज, आपने इस पैराग्राफ की तशरीह में जो है वो शेर, आयात, कौल, कोई हदीस, जो भी आपको इस पैराग्राफ जो कि दिया हुआ है उससे रेलिवेंट कुछ भी मिलता है ना, वो आपने यहाँ पे तशरीह में जरूर ऐड करना है। लोगों का कंसेप्ट ये है कि अगर आप सिर्फ शेर की तशरीह लिख रहे हैं ना, फिर ही आप जो है अंदर शेर ऐड कर सकते हैं। अगर आप नसर पारे की तशरीह कर रहे हैं तो आप अंदर शेर नहीं ऐड कर सकते। लोगों का ये कंसेप्ट होता है, और किसी को लोग तो समझते हैं नसर पारे की तशरीह में हमने सिर्फ तशरीह करनी, शेर वगैरह तो ऐड करने हैं ही नहीं, लेकिन एग्जामिनर पे इसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो जो है ये बात लोग कंसीडर नहीं करते कि हम नसर पारे की तशरीह में भी हम शेर और कौल, हदीस, कोई आयत, कोई चीज अच्छी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने ये चीज अपने जहन में रखने की, जब आप इस नसर पारे की तशरीह करें तो आपने जब उसे एक्सप्लेन करना है, जब आप उसे एक्सप्लेन करेंगे तो आपने उसका हवाला जरूर देना है किसी हदीस से, कि जो मेन बात होगी ना उसका हवाला जहां से भी आपको लगे कि इस चीज का उस कौल के साथ, उस हदीस, उस आयत, उस शेर के साथ कोई लिंक बन रहा है, कोई लिंक बन रहा है, तो आपने उसको जरूर वहां पे एक्सप्लेन करना है, यानी कि एक्सप्लेन करना है, फिर उस साथ शेर जरूर लिंक करके हवाला देना है। लेकिन एक शर्त है, शर्त ये है कि वो लिंक होता हो उस बात के साथ, वो शेर, आयत, कुरान पाक की या कोई हदीस या जो भी, ठीक हो गया। आपने जो है जब नसर पारे की तशरीह करनी है तो एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करना है, और रेलिवेंट आपको हदीस, शेर, कौल और आयत जो भी मिले आपने जरूर अंदर मेंशन करना है वो, ठीक है। और उसके बाद हम इसे अंडरलाइन करेंगे इस स्केल और इस मार्कर के साथ। मार्कर अंडरलाइनिंग के लिए जो यूज कर रही हूँ वो 604 नहीं बल्कि 605 ही यूज करूंगी, क्योंकि जिससे लिखा होगा आप उसी से अंडरलाइन करें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो अंडरलाइन करेंगे हम इसे जी। तो स्टूडेंट्स, अंडरलाइन करने के बाद इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो हमारे पास कुछ यूं हो जाएगी, ठीक है। एक चीज आपने याद रखनी है, इक्तबास की तशरीह जो है वो मैंने 60454 से लिखी थी, तो मैंने इसको अंडरलाइन भी 604 से किया, और इसको और इसको मैंने 605
5 से अंडरलाइन किया, ठीक है। आपने इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। और देखें आपका पेपर पहले था, तो अब देखें अंडरलाइन करने से उसके अंदर जान आ गई है, तो आपने अंडरलाइन जरूर करना है। तो मार्कर जो है मैंने यहाँ पे पूरी यूज की हुई है, निब देखें इसकी आप, ठीक है। तो ये ऐसे लाइनें लगाने के लिए निब इस मार्कर को अच्छे से कट किया जाता है, ठीक है, एक वे में ना। तो मैं आपको एक अलग वीडियो बना के उसमें बताऊंगी कि आप कट करके जो है मार्कर को किस तरह रख सकते हैं मार्जिन लगाने के लिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब आप जाते हैं वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि आप जो है दो बार मार्कर को यूज करके मार्जिन लगाएं। तो इसलिए मैं वो वीडियो भी बहुत जल्द इंशाल्लाह बना दूंगी कि आपने मार्जिन जो है लगाने के लिए किस तरह से कट मार्कर कट करना है अपना, ताकि आपको वहाँ पे मार्जिन लगाने में आसानी हो। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि हमने इक्तबास की तशरीह कैसे लिखनी है, उसमें कौन से पॉइंट्स हमने नज़र में रखने हैं, उनको हमने पॉइंट आउट करना है, उनको फॉलो करना है, ताकि हम मैक्सिमम मार्क्स जो है वो गेन कर सकें। और एक अहम बात, जब आपने क्वेश्चन पूरा कर लेना है तो लाजमी बात है कि आपने यहाँ पे एंडिंग लाइन जरूर लगानी है, ठीक है स्टूडेंट्स। एंडिंग लाइन लगाने के बाद जो है वो आपका क्वेश्चन एंड होगा। ठीक हो गया, ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।